یہ ہے وقت میڈیا۔ بزمِ ادب فکر و فن نہٹور کے زیر اہتمام 15 جون 2025 کو ایک شام آپریشن سندور کی جاباز بیٹیوں کے نام بیاد سلیم صدیقی مرحوم پترکار ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح کیا شاداب انصاری عرف ہونڈا نے۔ صدر مشاعرہ رہے اویس ذکی، شمع روشن کی مکیش کمار، مہمانان خصوصی رہے آر کے سنگھ IAS کانگریس پارٹی اور ویریندر سنگھ چمار بھاوی پرتیاشی سماجوادی پارٹی نہٹور۔ مہمانان ذی وقار رہے شمشاد انصاری سابق چیئرمین بجنور، خورشید منصوری چیئرمین سہانپور اور روی چودھری چیئرمین دھامپور۔ مشاعرے کے کنوینر رہے طنز و مزاح کے مشہور و معروف شاعر چاند پھٹافٹ نہٹوری اور کو کنوینر رہے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر فرقان دہلوی۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے خواہشوں کا احترام میں اس شاعرہ کو پیش کیا جائے گا۔ مجھے اس وقت اس شاعرہ کو پیش کرنا ہے جس کے لیے میں شائستہ ثنا کے ان مصروں کا سہارا لے رہا ہوں کہ تو کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں، وہ بھی آئے ہیں جنہیں میں نے بلایا ہی نہیں۔ بس تھوڑا سا بیدار ہو جائیے اب آپ کی محبوب شاعرہ کو سننے کے لیے کہ کوئی غم تیری محبت میں پرایا ہی نہیں، وہ بھی آئے ہیں جنہیں میں نے بلایا ہی نہیں، اور میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی، مجھ کو کمبخت نے شادی میں بلایا ہی نہیں۔ میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی، مجھ کو کمبخت نے شادی میں بلایا ہی نہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی، تیری تصویر بنانے میں بڑی دیر لگی۔ دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی، تیری تصویر بنانے میں بڑی دیر لگی۔ آج پھر چھت سے نظر ہی نہیں آیا سورج، آج پھر بال سکھانے میں بڑی دیر لگی، اور اب کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں میں، تجھ کو پردیس سے آنے میں بڑی دیر لگی۔ حضرات گرامی، یہ ایک خواتین کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کے وہ رنگ و آہنگ ہے جسے ہم گائے بگائے شاعرات سے سنتے رہتے ہیں۔ آئیے اسی احساس کو محسوس کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ہندوستان ہی نہیں پوری اردو دنیا کی اس محبوب شاعرہ سے جس نے ہمارے اپنے ہندوستان سے لے کر پوری اردو دنیا کے مشاعرے کو اپنی کلام کی خوشبو سے، اپنے کلام کی چمک سے نہ صرف ہمارے مشاعرے کو زینت بخشی بلکہ اس کے وقار میں بھی اضافہ کیا۔ اپنے کلام کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے والی انتہائی محترم شاعرہ جسے پوری دنیا نقط امروہی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، میں ان سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور تعلیم استقبال کریں۔ محترمہ نقط امروہی صاحب شمشاد بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، چیئرمین بجنور۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس بار جو چیئرمین بنے تو شمشاد بھائی ہی بنے، کیونکہ ان کی وجہ سے بجنور میں جس طرح سے مشاعرے ہوتے ہیں انشاءاللہ 30 سال کا عرصہ ہو گیا جب میری ابتدا یہیں سے ہوئی بجنور سے، اور یہاں ماہر سواروی صاحب بیٹھے ہیں جو میرے ابتدائی دور میں میری سرپرستی کی، جنہوں نے ذکی بھائی کی صدارت ہے، ان سے اجازت چاہتی ہوں۔ سکندر بھائی تشریف رکھتے ہیں، ہمارے سر جنید بھائی ہیں، راجویر بھائی ہیں، اور آپ سب کی محبتیں، آپ سب کی سماعتیں۔ ابرار بھائی سامنے سے آئے ہوئے ہیں ہمارے نجی آباد سے، اور ادھر عالم بھائی اور سب لوگ جن کے نام میں نہیں جانتی ہوں۔ فی الحال میں یہاں سے کچھ نئے شعر، مطلب چند شعر میں آپ کی تک پہنچاتی ہوں، اس کے بعد کچھ فرمائشیں ہیں، کچھ اپنی پسند سے آپ تک پہنچاؤں گی، سماعت کریں۔ کہ خواب آنکھوں میں آسمان کے ہیں، خواب آنکھوں میں آسمان کے ہیں، یہ پرندے بڑی اڑان کے ہیں۔ خواب آنکھوں میں آسمان کے ہیں، یہ پرندے بڑی اڑان کے ہیں، یہ پرندے بڑی اڑان کے ہیں، اور جتنے دشمن ہماری جان کے ہیں، جتنے دشمن ہماری جان کے ہیں، سب ہمارے ہی خاندان کے ہیں۔ جتنے دشمن ہماری جان کے ہیں، جتنے دشمن ہماری جان کے ہیں، سب ہمارے ہی خاندان کے ہیں۔ اور یہ شعر بھی کچھ یوں ہیں کہ
ख्वाब आँखों में आसमान के हैं, ये परिंदे बड़ी उड़ान के हैं, और उस पे भारी है खामोशी मेरी, उस पे भारी है खामोशी मेरी, जितने चर्चे तेरी जुबान के हैं। वाह 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 उस पे भारी है खामोशी क्या मेरी, कहने हैं बाबा। उस पे भारी है खामोशी मेरी, जितने चर्चे तेरी जबान के हैं। और कुछ एक शेर यूं भी है कि किस तरह अब कसे लगाम इस पर, किस तरह अब कसे लगाम इस पर, सारे झगड़े इसी जुबान के, आहा, वाह किस वाह तरह आप कसे जबान इस पर, वाह, वाह। किस तरह आप कसे लगाम इस पर, सारे झगड़े इसी जबान के हैं। और एक शेर कुछ यूं भी है, मैं पढ़ती हूँ कि जिसकी बुनियाद में है मेरा लहू, क्या कहने हैं? जिसकी बुनियाद में है मेरा लहू, सारे झगड़े उसी मकान के हैं। वाह 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 जिसकी बुनियाद में है मेरा लहू, सारे झगड़े उसी मकान के हैं। और दोस्त हैं दुश्मनी पे आमादा, क्या कहने हैं? दोस्त हैं दुश्मनी पे आमादा, अब ये दिन मेरे इम्तिहान के हैं। आहा, वाह दोस्त है दुश्मनी पे आमादा, दोस्त है दुश्मनी क्या पे कहना है? आमादा, अब ये दिन मेरे इम्तिहान के हैं। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, वाह, वाह, वाह। सब हमारे ही खानदान के हैं। क्या कहना है? और मक्ता कुछ इस तरह है कि मीरो गालिब से हम तलक नखत, वाह मीरो गालिब से हम तलक नखत, सबके सब एक खानदान के। वाह मीरो वाह गालिब से हम तलक नखत, सबके सब एक खानदान के हैं। वाह। मैं यहाँ से एक मतलब एक दो शेर पढ़ती हूँ। सिकंदर भाई का हुक्म है, हालांकि गज़ल पुरानी है, मगर अब आपकी मोतबर समाते हैं तो एक मतलब सिर्फ दो शेर पढ़ूंगी, उसके बाद फिर जैसा आपका हुक्म है जी सुनाते हैं। गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं, क्या कहने? वाह 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 गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं, गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं, बिछड़ गए क्या कहने? तो मिलने का इश्तियाक नहीं, क्या कहने? बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। शेर पढ़ती हूँ, मुझे बेहद अजीज है, समात कीजिएगा कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, क्या कहने? मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, ये इंतकाम की साजिश है इत्तेफाक, क्या कहने? वाह 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 क्या कहने? वाह 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 आहा, साजिश है इत्तेफाक नहीं। वाह एक बात आपसे कहना चाहूंगी, मैं मेजबान हूं तो मेरा फर्ज बनता है इस बात को कहने का, और
थोड़ा सा हिम्मत भी कर पा रही हूँ। यकीन कीजिए, जब मैंने 30 साल पहले यहाँ नेज़ों का मुशायरा पढ़ा था, इतनी अच्छी शायरी सुनी जाती थी, इतनी दादो तहसीन की सदाएं बुलंद होती थी। ताली बजाना हमारे माशरे में नहीं है, ये तो एक आम कर दिया गया है। मगर मैं अभी तक, जब से मुशायरा शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत मेहनत से चांद भाई ने इस मुशायरे को सजाया है, फुरकान भाई ने सजाया है, आप लोगों की मेन जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोग उस मुशायरे में उनके शाना बशाना रहें और इस मुशायरे को कामयाबी अता करें। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि हर किसी को अपनी दुआओं से नवाज सकते हैं। मैं ये शेर भी बतौर ख़ास पढ़ना चाहती हूँ, समाअत कीजिएगा कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, तमाम उम्र का बंधन है ये मज़ाक। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बंधन है ये मजाक बहुत शुक्रिया, नहीं। बहुत नवाजिश। क्या आपने मेरी इस मुख्तसर सी दरख्वास्त को कबूल किया? बहुत जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ती हूँ जी, अबरार भाई पढ़ती हूँ कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, तमाम उम्र का बंधन है ये मज़ाक क्या कहने, वाह वाह, नहीं, वाह वाह वाह, तमाम उम्र का बंधन है ये मज़ाक नहीं। और आपकी इतनी मोहब्बतें मिल गई हैं, यहाँ डाइस से भी सबकी मोहब्बतें मिली, मेरे बड़े भाई ज़की भाई, सिकंदर भाई, शमशाद भाई, इधर जुनैद भाई, इधर राजवीर भाई, सभी इधर माहिर सिवारवी साहब, इनकी तो बात ही मत कीजिए, इनका तो जिक्र करना बेकार है, गिनती में नहीं गिनती हूँ मैं इनको। सुनिए, नहीं, बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं और मेरे जूनियर हैं। मैं पढ़ती हूँ समाअत की जगह कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, क्या कहने, वाह वाह वाह, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, के कमरे में। क्या कहने, वाह, यकीन कीजिए, चांद भाई से जब जब मुलाकात होती है तो एक वालिद वाली फीलिंग आती है। बेशक, मेरे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, और बड़े भाई का मर्तबा भी बाप की जगह है। मेरे लिए बहुत सारे मेरे बड़े भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं ये मक्ते का शेर उनके खिदमत में पेश करती हूँ, समाअत की जगह कि कबूल कैलू नक हत बड़े खुलूस के साथ, क्या कहना, कबूल कैलो नक हत बड़े खुलूस
वाह 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 वाह, क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वाह, तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। असल में जिस गीत की आप फरमाइश कर रहे हैं वो मैं आखिर में 1 से 2 बंद सुना दूंगी, मगर मैं क्योंकि हमारे जी सर इनका गीत तो नहीं पढ़ सकती, अभी नहीं पढ़ सकती छोटे भाई हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूंगी, आपका हुक्म है। मगर मैं उससे कबल मैं एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, सिर्फ उसके भी सिर्फ 2 बंद पढ़ूंगी, क्योंकि हमारे अबरार भाई ने कहा था कि फादर्स डे है, और फादर्स डे मतलब यानी कि पिता का दिन, वालिद मोहतरम का दिन है। तो मैं माँ और बाप दोनों के लिए ये पढ़ती हूँ। ये नज़्म छोटी सी है, समाज की। आप जैसे कि सभी जानते हैं कि दुनिया में हर शय खरीदी जा सकती है, मगर आप दौलत से प्यार नहीं खरीद सकते हैं। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की शफकत नहीं खरीदी जा सकती। मैं पढ़ती हूँ, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, समाप्त कीजिए। खास करके जो मेरे छोटे बैठे हैं उनकी शिरकत चाहती हूँ। कि यूँ तो हर शय मयस्सर है बाजार में हौसला, कि यूँ तो हर शय मयस्सर है बाजार में हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूँ तो हर शय मयस्सर है बाजार में हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी फिर भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। अब मैं पूरा बंद पढ़ूं, ये पूरे बंद पढ़ूं, इसके इजाजत हो तो पढ़ती हूँ समाज की जगह कि माँ ने हमें क्या क्या दिया है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। मगर मैं पूरे का पूरा गीत, क्योंकि इसमें माँ के हवाले से बंद ज्यादा है, मगर मैं क्योंकि आज फादर डे है तो अपने पिता को, जितने मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं उनको पेश करती हूँ, सुनिएगा, क्योंकि वो भी मेरे लिए मेरे वालिद मोहतरम से कम नहीं है। पढ़ती हूँ ज़की भाई, सुने। कि माँ की ममता के आंचल तले माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले। माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले। माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। और ये आखिरी बंद, एक बंद इसमें मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि जो मेरे भाई हैं उनकी भी फरमाइश पूरी करनी है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अबरार भाई बैठे हुए हैं और आप सब बैठे हुए हैं, आप सबको के पेश खिदमत है ये बंद मेरा। बतौर खास चांद भाई फोटो खींच लीजिए, आपने नहीं खींचा। बड़े खतरनाक लोगों के साथ फोटो हो जाते हैं कभी कभी, आपको नहीं पता, क्योंकि तंजु मज़ा के शायर के साथ में फोटो खींचने का मतलब होता है कि पता नहीं क्या 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 टाइटल बना के लिख देते हैं। तो पढ़ती हूँ, सुनिए। खैर वो मेरे बड़े हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि गम में बच्चों के कब आंख पुरनम नहीं,
अगर बंद सच्चा और अच्छा हो तो आपकी ताईद चाहती हूँ समाप्त करें कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने क्या कहने, वाह। मेरे भाई का हुक्म है कि हुक्म की ताबीर में मैं ये बंद दोबारा पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आखिरी बंद पढ़ने चलती हूँ सामने, कि अपने माँ के चेहरे मुबारक को मोहब्बत भरी नज़र से देखना ऐसा है जैसे कि तिलावत कुरान पाक कर ली। मैं पढ़ती हूँ, आपकी शिरकत चाहती हूँ, इस बंद में भी समाप्त करेंगे कि माँ का चल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ का चल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल। क्या कहने, तालियां जोरदार, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत नज़्म सुनाई। अब आप बता दीजिए मुझे जो आप सुनना चाहते हैं। वैसे मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं सिर्फ एक बंद, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ, क्योंकि चांद भाई को पढ़ना है शायद मेरे बाद, तो उनके लिए थोड़ा सा साहब को भी पढ़ना है, चांद साहब को भी पढ़ना है, और अल्ताफ भाई को भी पढ़ना है। तंजु मज़ा के शायर में हमारे चांद भाई को पढ़ना है, तो चांद भाई के लिए थोड़ा सा एक मैं भूमिका यहाँ से बनाती हुई चल रही हूँ, उनको थोड़ा सा सुनिए। ये गीत भी आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और मैं बंद भी पढ़ दूंगी। असल में फहरिस्त तवील है और हकीकत में हमें अल्ताफ को सुनना है, मुझे भी जस्ट अभी निकलना है माजरत के साथ। समात की जगह पढ़ दी कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं एक कली प्यारी सी, ये इन्हीं की कैफियत बयान कर रही हूँ आलम भाई की, कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जा
सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। और आखिरी वो तंज़ो मज़ा जिसमें मज़ा शामिल है, मैं पढ़ती हूँ। यूँ तो इसमें मतलब एक तरह से देखा जाए कि हमारे इस्लाम में इस तरह को कह देते हैं कि 4 शादियाँ जो हैं जायज़ हैं, मगर ये कोई रिवायत नहीं है कि 4 शादियाँ जायज़ हैं। इसके पीछे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मेरे ख्याल में जितने हमारे यहाँ टोपी लगाए हुए भाई बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को इस मसले का पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आलम भाई, अगर कोई किसी की बीवी न रहे तब आलम भाई शादी कर सकते हैं। किसी की औलाद न होती हो तो आप शादी कर सकते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, अगर आप इस्लामिक किताब पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि क्या साथ है तेरा मेरा, चांद भाई सुनिएगा, क्या साथ है तेरा मोबाइल में मेरा। लगे हुए हैं, इनका भी कहीं ना कहीं जुगाड़ लग रहा है। नहीं, वो भी उनका साथ ढूंढ रहे कि हैं। क्या साथ है तेरा मेरा, वाह वाह वाह। तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, वाह। तेरा बसती बसती वाह, तेरा। वाह। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। क्या कहना। तू चाहे बीवियां 4, अरे रे बाबा ना वाह। बाबा। क्या कहना है। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, वाह अरे रे बाबा ना। भाई, वाह 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 वाह। इस वाह, आखिरी क्या घंटे मेरा भाई बहुत दौड़ के वापस आया, पता नहीं जाने अल्लाह जाने के क्या होगा मुस्तकबिल में इसका। ठीक है, चलिए शुक्रिया। चलिए, बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी नकत अबरोही साहिबा। इन्होंने न सिर्फ हमारे मुशायरे के हुस्न में इजाफा किया, बल्कि हमारे मुशायरे के वक़ार को भी बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको भी, और मुबारकबाद हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व साबिक चेयरमैन साहब, तमाम मसरूफियत के बावजूद यहाँ जल्द अबरस्त है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, नहटोर, ज़िला बिजनौर, यूपी, इंडिया से।